I extend my heartiest congratulations to Dr. B.K. Sanjay ji and Dr. Gaurav Sanjay ji for penning down the book From the Pen of Surgeons. A huge round of applause for them. Surgeons is a profound exploration of topics critical to public welfare and national interest, ranging from healthcare and road safety to education and socio-economic challenges. The book is an eclectic collection of 102 short essays written over a period of 5 years. The book ranges from a variety of topics that cause social awareness, including road traffic, violence against doctors, negative impacts of automobiles, to raising awareness for personal health on common diseases, including back pain, tackling diabetes, and negative impacts of smoking. It is interesting how the essay related to COVID-19 pandemic will start forming a journey of personal experience as you start reading through the pages. It has been so rightly denoted that coexistence with nature and immunity building is the need of the hour. Similar topic is the hand hygiene, again informational and interesting. The book is particularly commendable for its balanced approach in examining both the personal and systematic dimensions of healthcare. The book reflects a deep commitment to improving society through education and public awareness. The social message of empowerment of women actually opens our eyes to importance of good education in changing mindset of the society. The book is engaging, informative, yet it has a personal touch to it. As you flip through the pages, and every time you keep the book down, a new window will have opened in your brain, as you might have found a solution to the most critical issue in a simple and subtle way of writing. I heartily congratulate the authors for creating a memorable teaching experience for us all. Thank you. Good evening, everyone, and a very warm welcome to the Doon Library and Research Center. It's my duty as the honorary director of this institution to welcome you all in our midst. It's a public facility, and it is for all of you to enjoy whatever is on offer. Today we have Dr. B.K. Sanjay and Dr. Gaurav Sanjay thoughts or a compendium of thoughts, and as it's clear, it's on the topic of health. We had an opportunity to listen to some poetry written by Dr. B.K. Sanjay on a different platform. So I look at Dr. Sanjay as a multifaceted personality, both poetry and wielding the scalpel. So I think it's a great tribute to both the pen and the scalpel. the pen and the scalpel. So that's we have distinguished people here. Vice Chancellor Dr. Farooq, former Chief Secretary, former DGP, former Director of LBSNNA, and General Negi, and other distinguished people from the, and Dr. Sudha Pandeyji. So all of them, we welcome you in our midst. We have had the occasion to hear many people on many subjects. Now, what Dr. B.K. Sanjay and Dr. Gaurav Sanjay are going to spell out is something important for all of us. Everyone aspires for longevity, and that's a human trait. So the better we are and the longer we live, it's nice. So with these few words, I welcome all of you to this premises. It is a public institution. The more you sort of endorse it, the better the institution's functions will be. Thank you. May I now take the privilege to invite on stage our chief guest for the day, IPS Shri Anil Kumar Raturi ji, former DGP Dehradun, Uttarakhand.
The chairperson of today's program is IAS Dr. Sanjeev Chopra ji, former director at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. Sincere request to the guests of honor to please come up on the stage. I invite Professor Omkar Singh ji, Vice Chancellor of Veer Madhav Singh Bhandari Uttarakhand Technical University. I welcome you on the stage, sir. I would now request Lieutenant General J.S. Negi ji, retired from General Officer Commanding IMA, to please come up on the stage. It is now my humble request to Orthopedic and Spine Surgeon Padma Shri Dr. B.K. Sanjay ji. Let us now begin the event by seeking blessings from Goddess Saraswati to empower us through the path of light and wisdom. It is my request to the dignitaries seated on the stage to please proceed towards lighting of the ceremonial lamp. दो सर्जन मिलके एक दिया जलाएं। अफसर Among us to grace the occasion, I would sincerely request Dr. B.K. Sanjay ji and Dr. Gaurav Sanjay to felicitate the chief guest for the day. I place Shri Anil Kumar Raturi ji with a shawl, memento and a plant. मौके मिलते हैं सही आप लोगों को सम्मान करने के लिए जल्दी से ध्यान रखना पड़ेगा I would now request our renowned authors to felicitate the chairperson of today's event, IAS Dr. Sanjeev Chopra ji. संदेह हमारी बिल्कुल हार्दिक सर डीसी साहब ही रिटायर्ड नहीं सर बाकी सर मेरा रिटायर्ड के बारे में बहुत डिफरेंट ओपिनियन है कि किसी टाइम पे मैं अपने अनुभव It is now my humble request to Dr. B.K. Sanjay ji and Dr. Gaurav Sanjay ji to felicitate the guests of honor. Professor Omkar Singh ji, I request Dr. B.K. Sanjay ji and Dr. Gaurav Sanjay ji to felicitate Lieutenant General J.S. Negi ji. मेरा भी उद्देश्य यही था ना कि लोगों को मिलवा दूं और वैसे भी हम लोग जोड़ने तोड़ने में बहुत माहिर हैं। नहीं हम सब तोड़ते भी हैं जो टेढ़े होते हैं उनको सीधा भी करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमने डिफॉर्मिटी बैठा उसको हमने एक टैगलाइन दिया है पौधे सीधे किए जाते पेड़ Justice Rajesh Tandon ji. We heartily welcome you, sir. I request the authors to please felicitate sir with a shawl and plant and a memento. It is now my humble request to orthopedic and spine surgeon Dr. B.K. Sanjay ji, the author of this book, to please come up on the stage, on the podium and address the gathering. सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं और मैं हमारे जितने अतिथि आए हैं मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने मैं सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल रतूड़ी जी आईपीएस रिटायर्ड डीजीपी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सच में आभार प्रकट करता हूं
क्योंकि जब मैंने सोचा नहीं था तो मुझे ऐसा अंदाज नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे हम अपने यहाँ प्रोग्राम ऐसे कई प्रोग्राम कर चुके हैं। अब तक हमने लगभग 200 से ज्यादा फ्री कैंप किए हैं और इतने ही से लगभग हमने फ्री पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर किए हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब लोग इसके विटनेस भी हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ चीफ गेस्ट जैसे वहाँ पे कार्यक्रम में आते रहते हैं और प्रतिष्ठित लोगों को हम बुलाते रहते हैं। आज के दूसरे जो कार्यक्रम के अध्यक्ष, क्योंकि मैं बहुत मेरा अपना भी मानना है कि हम यदि जितने शिक्षित लोगों के बीच में बैठेंगे तो कहते हैं खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदल देता है, और हमें जो बदलाव आया है वो इसी कारण आया है। मैं संजीव चोपड़ा जी से बड़ा हेजिटेंट, बल्कि वो अभी कह भी रहे थे कि आपने जो काम यहाँ करना था पेट्रोल ज्यादा खर्च किया, हमारे यहाँ करते तो पेट्रोल भी नहीं लगता। क्योंकि क्या हुआ क्या सर, जब आपने मुझसे कहा, और स्नेहा ही नाम तो है ना, तो उन्होंने जब मेरे पास फोन किया तो सर मैं एक दिन पहले ही है और मैं यहाँ पे कमिटमेंट कर चुका था। तो जब आपने प्रॉब्लम नहीं है ना, वो नहीं है, तो मैं आपको ये और कहना चाहता हूँ, सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगला प्रोग्राम इसी बुक का संजीव चोपड़ा जी के बाव कैफे में होगा। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इसी बात को मैंने कहा, इससे अच्छा मौका क्या होगा इनविटेशन देने का। दूसरा, हमारे जनरल जयेश नेगी जी से हमारा किसी कार्यक्रम में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ही परिचय हुआ था, तो मैंने तभी वो पुस्तक को दिया था। पुस्तक हमारे पास उस समय थी लेकिन हम कार तक ट्रामे के नहीं दे पाए, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्या होगा। वो सच्ची माने में पहले वो मुलाकात थी, आज दूसरी मुलाकात है। तो इन कार्यक्रम को हम इसमें जोड़ने और तोड़ने की जो बात कही थी, मैं सर आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे टंडन साहब जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे शुभचिंतक भी हैं और कुछ हद तक संरक्षक भी हैं, क्योंकि हमारे में और सर की उम्र में लगभग 20 साल का फर्क है। तो देखने में इतने वो लगते हैं, हमारी तरह ही यंग है। क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। और टंडन साहब देखिए दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं और थोड़ी सी देर हो गई थी तो इसीलिए, लेकिन फिर भी आप सर सब सही समय पे आए हुए। ओंकार सिंह जी से हमारा परिचय हुआ था, हमारी माननीय वाइस चांसलर, रिटायर्ड वाइस चांसलर सुधा पांडे जी ने करवाया था। सुधा पांडे जी कानपुर की हैं और कानपुर से मैंने मेडिकल कॉलेज पास किया। अभी पिछले हफ्ते में कानपुर ही गया था, हमारी गोल्डन जुबली हुई, मैंने 74 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था और 45 ईयर्स हमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हो गए। तो मैं ओंकार जी का, यद्यपि ये पुस्तक, अब मैं सम्मानित अतिथि हमारे फारूक साहब पांडे जी एंड रविशंकर जी, हमारे जो यहाँ पे सिंगर साहब बैठे हुए हैं और मंत्री, सभी लोगों को, पद्मश्री कल्याण सिंह जी, हम सब लोगों को बुलाना चाहते थे। तो हमें तिवारी जी ने कहा था 100 लोग आ पाते हैं, तो हमने सोचा कि रिप्रेजेंटेटिव लोगों को बुला लेते हैं, किसी पद्मश्री को बुलाते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, कुछ रिटायर्ड इंजीनियर को बुलाते हैं, कुछ साहित्यकार को बुलाते हैं, 1-2 हमारे डॉक्टर भी आए। तो लगभग एक तरफ से सभी लोग आए। प्रवीण मित्तल जी हमारे सिनर्जी के हैं, तो वो लोग आए हुए। तो मैंने कहा कम से कम, और हमारे जो परिचित लोग हैं, फैमिली है, मेरी बहन तो दिल्ली से आई है, उसने कल हमारे बेटे ने कहा होगा कि बुआ जी हमारे इसका होगा, फेसबुक में देखा होगा, तो रातों रात वो यहाँ पे आ गई। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है। अब मेरी बड़ी बहू भी आ गई, मेरे पोतिया और मेरे बेटा भी यहाँ पे आ गए। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ। अपनी बात को बहुत, क्योंकि टाइम ही इतना कम है, लेकिन मैंने, हाँ, यद्यप पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है, जैसा कि नाम से जाहिर है, फ्रॉम द पेन ऑफ द सर्जन, पर मेरा मानना है कि विचारों का प्रचार प्रसार के लिए उसी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए जिस भाषा को अधिकांशतः लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं भी यहाँ पर बोलने से पहले काफी कस में रहा कि मैं अपने विचार हिंदी में व्यक्त करूं या अंग्रेजी में। आपने देखा हुआ एंकर जी सिर्फ अंग्रेजी में बोल रहे हैं। वैसे तो देखा जाए, मुझे अंग्रेजी वाले एंकर की व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि हिंदी वाले जो एंकर हैं वो हमारे मतलब ऑल द टाइम है, वो मल्टीपर्पज है, वो यहाँ आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि किताब अंग्रेजी में है तो कम से कम एंकर तो अंग्रेजी में होना ही चाहिए ना। मैं इसको आदर के तौर पे कह रहा हूं, आपको दूसरे ढंग से ना लें। यदि मैं आदर्श की बात करूं तो मुझे अपने विचार इंग्लिश में ही व्यक्त करने चाहिए, क्योंकि पुस्तक इंग्लिश में लिखी गई है। लेकिन यदि व्यवहारिक समस्या को देखें तो मैंने यही सोचा कि हमें अपने विचार हिंदी में व्यक्त करने चाहिए। मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि आपने इसको कैसे लिखा। पहले तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप डॉक्टर हैं तो आपके लिखने पढ़ने की आदत कैसे पड़ी, आपने इस तरह का लिखने का कार्य कैसे किया। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक बचपन से ही है और मैं अब तक हजारों पुस्तकों को पढ़ चुका। धन्यवाद। दूसरी, मैंने अभी यह आदत बना ली कि जब भी मैं किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाता हूं, यदि वहां पर पुस्तक की दुकान होती है तो वहां से कोई ना कोई पुस्तक जरूर खरीदता हूं।
और मैं मानता हूं कि यदि मैंने टिकट पे से 25,000 खर्च किए, 50,000 उस ट्रिप पे खर्च किए, और मैं सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं से ढंग से 500 रुपए की मैंने किताब खरीद ली है और कहीं वो रद्दी में भी जाती है, तो भी हम उसमें कम से कम उस किताब के पन्ने में 1 या 2 लाइन हम जरूर देखते हैं कि मुझे मन को भा जाती है। मैं इसी कारण उस पुस्तक को खरीद लेता हूं कि इससे मुझे 1 लाइन बहुत अच्छी लिखी और उसी को मैं अंडरलाइन करता हूं। मैंने राहुल शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ा हुआ था, तब उन्होंने किताबों के बारे में क्या कहा था, और एक इंग्लिश लोग हैं जो कि पढ़ते हैं फिर वो वहीं छोड़ देते हैं। उनका छोड़ने का, किसी ने कहा कि आपने छोड़ क्यों दिए, किताब आपकी छूट गई है, तो उन्होंने कहा मैंने छूट गलती से नहीं गई, मैंने जानबूझकर इसको छोड़ा है कि जिससे कि लोग इसको, जो भी आए वो इसको पुस्तक को पढ़े। क्योंकि मैं मानता हूं और मैं अंबेडकर के कोटेशन में बहुत विश्वास करता हूं, and ideas are mortal and ideas need propagation as much as plants and need watering, otherwise both will wither and die। यदि इसको हिंदी में अनुवाद करें तो मनुष्य और विचार नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझा जाते, अंततः मर जाते। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम किया गया है, मरने के लिए नहीं, सच्चे माने में इसको अमर होने के लिए ही किया गया है। मैंने ये लिखा भी है, अब जीवन थोड़ा है, बताने को ज्यादा है, सच कहूं तो पुस्तकों से प्रेम मेरा पुराना है। इसी तरह से मेरे पास एक बार जिसकी कैसे लिखी गई, अभी सभी लोग पूछते हैं, आप लोग भी जानना चाहें कैसे। मेरे पास एक बार द पायनियर पेपर के एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि आज यहाँ बैठे हुए भी, हरिओम जी, मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, मैं आपके बारे में जानता हूं, मैंने देखा भी है, क्या आप हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, तो हमारा एक पेपर है पायनियर, इंग्लिश का पेपर है, उसमें आप गेस्ट कॉलम लिख दीजिए। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए, तो मैं तो ऐसे मौके की तलाश में रहता हूँ कि कोई हमारी बात को सुने। कई बार मैं अपनी व्यक्ति बात लाऊंगा, 1-2 मिनट फालतू भी ले लूंगा। सच में कई बार निमंत्रण आता है तो कई बार मुझे लगता है कि यार यहाँ जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, इस कार्यक्रम में जाऊं ना जाऊं। फिर मैं सोचता हूं 2 कारण से मैं जाता हूं। एक तो उन्हें कोई ऐसा मिल नहीं रहा होगा, उन्होंने कुछ हमें अच्छाई बात सोची कि डॉक्टर साहब यहाँ भी आ जाते हैं, तो हमने कहा। और कई बार आपने देखा मेरे से मरीज कहते भी, बहुत से लोग कहते डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर लगते ही नहीं, सच्ची बात। हम उनको कह देते हैं तो वो हमें समझते हैं कि नहीं यहाँ ना बैठो, तो मैंने कहा कम से कम ये है, वो तो हमें समझते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, प्रतिष्ठित आदमी हूँ, तो कम से कम मुख्य अतिथि या गेस्ट ऑफ ऑनर जैसी कोई उपाधि दे रहे हैं या कह रहे संबोधन, तो वो भी हमारे बड़े लिए। और मैं इसलिए भी जाता हूँ कि हाँ सच में उन्हें कोई नहीं मिल रहा होगा, मैं अपनी बात तो कह ही दूंगा, और वो नहीं तो 2-4-10 लोगों को अपनी बात हमारी बताएंगे। धन्यवाद। मैंने उस समय तो शायद उनको तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे लिए भी एक अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने में बहुत ज्यादा समय तो लगता नहीं, ना साधन लगते हैं। मैंने सोचा कि हमारी बातों को अधिकांशतः लोगों को पहुंचाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। इससे मुझे एक समस्या लगी कि यह एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ये सच बात बता रहा हूं आपको कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, तो मुझे ये लगा कि मुझे ऐसा नहीं कि इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन इसलिए लगा कि इसको लोग पढ़ेंगे कितने। यदि यही चीज कोई हिंदी वाला कहता तो मैं सच में खुश होता, क्योंकि यदि आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया ही मान लीजिए, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया की जितनी भी सेल है वो हिंदी के नीचे के भी अखबारों से कम है। उसका कारण यह है कि उसकी जो पहुंच है वह ज्यादा लोगों तक होती है और इस हर कोई आसानी से समझ सकता है। यही मेरा उद्देश्य था, लेकिन मैंने फिर भी कहा इंग्लिश का है तो अच्छा है, मैं लिख लूंगा, और मैंने ये लिखा भी। हमने इसमें जरूर सोचा सबसे पहले हम भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन बाद में जब मैं लिखने लगा तो समझता था और उस बात को भी मानता था कि जितना व्यक्ति शिक्षित होगा उतना ही व्यक्ति संवेदनशील होगा, और शिक्षा ही जो हमारे मस्तिष्क क्षितिज को बढ़ाती है, जिससे मैं मन से इसको प्रैक्टिस भी करता हूँ। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, संवेदनशील हूं, तो मैंने बहुत सी सामाजिक समस्याओं जो कि अपने देश में समाज में प्रचलित है, जैसे शराब का पीना, तंबाकू का खाना, जीवन शैली में होते बदलाव के कारण होने वाली बीमारियां, खासतौर से मोटापा, जो यानी कि जो अभी इनएक्टिविटी का जैसे हो गया है, आइसोलेशन है, ये 2 नई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो रही हैं। और मैंने समझा कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा जिससे हम इन बातों को लिख सकेंगे और कुछ लोग हमारी बात मानते हैं और पढ़ेंगे भी। और मैं यहाँ पे यह भी कहने चाहूंगा कि मैंने जो भी लिखा, आज यहाँ पर पायनियर के एडिटर भी बैठे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कभी काटा नहीं है, हमने लिख कर भेजा, इन्होंने टाइटल सहित वैसा ही पेपर में निकाला। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप में दोनों लोगों को, आपके पायनियर के सभी पदाधिकारियों का, जितने लोग भी हैं, उन सब का आभार प्रकट करते हैं कि उसी के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैं यहाँ पर यह भी मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है सर,
बहुत बड़ी समस्या, और मैं तो यहां तक मानता हूं कि जनसंख्या ही सभी समस्याओं का कारण है। मेरा मानना तो ये है सर। मैं इन सब के ऊपर भी लिखा, और आज यदि मैं मानता हूं यदि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सबको भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए और एक जैसा देना चाहिए और सस्ता देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि वह मिल जाए तो हमारे एक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि हमारा पूरा देश आत्मनिर्भर होगा। मेरा मानना है कि जब लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे तो निश्चित ही तौर पर हमारा देश विकसित भी होगा, अंततः विश्व गुरु की कल्पना को साकार कर सकेगा। तीसरी बात, धन्यवाद सर। तीसरी बात हम लगी यह है कि जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म तो हमें कुछ ऐसे विषयों को कि सरकार की बहुत सी नीतियां चलती रहती हैं, जैसे कि मोदी जी की चलाई गई आयुष्मान भारत योजना पर मैंने तुरंत जिस समय ये आई हुई थी, नोटिफिकेशन ही हुआ था पेपर में, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये एक आर्टिकल लिखा हुआ था, और मैं इस बात को मानता हूं कि इस नीति ने इस नीतियों को लोगों तक भी पहुंचाया। मेरा उद्देश्य था, मैंने उसमें एक टैगलाइन लिखी हुई थी कि यदि ये आयुष्मान भारत योजना को ईमानदारी से लगाया जाता है तो ये सर मील का पत्थर साबित होगी, और आप लोग इस बात के आज मान भी रहे होंगे। मैं तो इसमें मान रहा हूं। वो कैसे? मैं एक प्रमाण दे रहा हूं कि हमारा जो काम पहले होता था वो काम अब नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि पहले हर किसी को हमारे यहाँ आना पड़ता था। आज जिसके पास पैसे नहीं है और जिसको लगता है कि हम आयुष्मान में इलाज करा सकते, हो सकता है वो हमारे जैसा ना हो, लेकिन उनकी पहली प्रेफरेंस आयुष्मान होती है, दूसरी प्रेफरेंस आज हमारी होती है। जबकि पहली प्रेफरेंस हमारी होती थी और दूसरी प्रेफरेंस कोई और होती। इसका एक महत्व ये है। तो मैं तो इस माध्यम से भी मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरह की नीतियों से अपने देश की सेवा करता है। मेरा मानना है शिक्षित और समृद्ध व्यक्ति अपना इलाज तो करा सकता, लेकिन यह व्यक्ति जो 20 रुपए किलो का 1 किलो आटा नहीं खरीद सकता है, वो 20 रुपए की किलो में 1 ग्राम गोली कैसे खरीद सकता है? तो ऐसे लोगों का भी इलाज होना जरूरी है, और मैं समझता हूं ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जिसको मैं बार बार कहता हूं, हम जैसे डॉक्टरों को भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और समाज में लोग जो हैं उनको भी ऐसा दुरुपयोग करने का मौका नहीं देना चाहिए। कि जब आप अखबारों में पढ़ते हैं, इसके बारे में भी मैंने बाद में लिखा हुआ था, क्योंकि समय के अभाव में मैं नहीं कह पाऊं। इस बात के लिए मैं समझता हूं, और मोदी जी उनके सभी सहयोगों की इस माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यदि किसी समाज में बदलाव लाना है तो बदलाव आम जनता नहीं बल्कि नीति निर्माता लाते हैं। मेरा तो मानना यह है। सिर्फ देश में स्वतंत्रता भीड़ ने नहीं, लेकिन गांधी, अम्बेडकर या जो वल्लभ भाई पटेल या ऐसे नेताओं ने ली, क्योंकि वो डायरेक्शन देते हैं। भीड़ को डायरेक्शन नहीं आती है, वो डायरेक्शन का काम करते हैं। हमारा यह प्रयास रहता है किसी माध्यम से यदि हमारी बात लोगों तक पहुंचती है और थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसी उद्देश्य के साथ हमने इतने ये गेस्ट कॉलम लिखे हैं, जैसा कि अभी एंकर महोदय ने बताया था, 102 चैप्टर लिखे हैं। मैंने अतिथि स्तंभ लिखने की शुरुआत की थी, इम्पैक्ट ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इन इंडिया। इसके बाद डिसेबिलिटी, डायबिटीज, योग, स्मोकिंग, खासतौर से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए मैंने एक टैगलाइन दी है, इफ पनिशमेंट इज नॉट पेनफुल हाउ इट कैन बी पनिशमेंट। राइट टू एजुकेशन का नहीं, राइट टू क्वालिफाइड टीचर्स की बात होनी चाहिए। इस तरह से सफाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर व्यवस्था, खास तौर से स्टेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। आज देखिए 250-250 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वहां पर प्रोफेसर नहीं है सर, सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा सकता है, जिसको आता नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि परिणाम देखते हैं, इलाज क्यों खराब हो रहा है, इसलिए नहीं कि प्रोफेसर बन, टाइम से कोई प्रोफेसर नहीं बनता, उम्र बढ़ने से अकेले प्रोफेसर नहीं बनता, अनुभव से प्रोफेसर बनता। जिसने कोई देखा नहीं, मुझे क्या से, यदि हम रहे भी अमेरिका में और हम अंग्रेजी बोले नहीं तो हमें अंग्रेजी कैसे आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। तो ये हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और कभी कभी ये तो देखिए कि पढ़ने के लिए करोड़ों रुपए लग रहे हैं। आप सोचिए, गरीब आदमी कभी सोच सकता है कि उसका लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? ये बातें हमने सब इस पुस्तक में लिखी हो रही है, अपने ढंग से लिखी है, उनको बताते हैं। मेरा मानना है कि सक्षम व्यक्ति और अक्षम व्यक्ति की कोई तुलना नहीं हो सकती। एक 6 फुट का व्यक्ति, एक 4 फुट की व्यक्ति कभी बराबरी नहीं हो सकती है। एक पढ़ा लिखा और एक बिना पढ़ा लिखा, गरीब और एक अमीर, एक गांव में रहता है, एक शहर में रहता है, और जो सादा संपन्न है, उनकी कैसे बराबरी हो सकती है? मैं तो समझता हूं कि इसके लिए हमने अपने विचार दिए, और इसको बदलने के लिए मैं समझता हूं एजुकेशन इज एन एंटीडोट फॉर ऑल सोशल इल्स। हम और आप जो यहाँ पर बैठे, यदि हम और आप अपने अतीत के बारे में सोचें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं शायद 10% तो ऐसे लोग होंगे जो जितना आज हो गए उनके माँ बाप उससे ज्यादा हुए होंगे, लेकिन 90% के बारे में मेरा अंदाज है आज उनका जो स्टेटस है, उनके माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे बच्चे का स्टेटस ये है। लेकिन हम लोगों के माँ बाप के अलावा हमें यहाँ पहुंचाने में किसी का योगदान है तो वह पुस्तकों का और शिक्षा।
इसलिए मैं मानता हूं शिक्षा बहुत, मेरा मानना है कि सड़कों पे जो समस्याएं चल रही हैं, घरों में जो समस्याएं चल रही, समाज में जो समस्याएं चल रही, लाइफ स्टाइल की समस्याएं, ये सब व्यावहारिक समस्याएं हैं। इसको मैंने बार बार बोला है, वी बिकम व्हाट वी थिंक, वी आर व्हाट इज आवर हैबिट्स आर, वी आर व्हाट वी ईट। हम जैसा खाते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, इसी तरह से अभी हम लड़कियों को बता रहे थे, यदि 10 लड़के जहां रहते हो, 9 पढ़ने वाले होते हैं, वो एक नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ जाता है। मैंने अपने दोस्त का एग्जाम्पल दिया, मेरे साथ पढ़ता था, कम पढ़ने वाला था, लेकिन मेरे साथ कमरे में रहा, तो आज वो भी मेरी ही तरह प्रोफेसर भी बना, रिटायर्ड भी हुआ, उतने ही पैसे कमा रहा है जितने हम कमा रहे हैं। ये मैं कन्विंस होके कह रहा हूं। और जो लोगों को सर गलत आदतें पड़ जाती हैं, अच्छे लड़के सर, अच्छे लड़के, हमारे पास गोरखपुर यूनिवर्सिटी का टॉपर लड़का आया था, उसने ड्रग एडिक्शन ले लिया था सर, उससे वो उबर नहीं पाया। तो इसलिए है, ये लोगों का असर होता है। और इन बातों को मैंने अपने ही ढंग से कहा है, तो मैं इनको 3 ही बातों को इसको कहता हूं कि समस्या सब समस्याओं की जड़ है और ये समाधान की भी जड़ है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो मैं उनको 3 ही बातें बताता हूं, बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल। क्योंकि यदि हम आज यहाँ बैठे हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो, बच्चे हो, हम कहीं नौकरी करते हैं, नई जगहों पर रहते हैं, दोस्त बनाते हैं, नॉलेज स्किल बाद में आती, सबसे पहले व्यवहार आता है। यदि आप बहुत अच्छी तरह से लड़की या लड़के से बात नहीं करते हैं तो बात नहीं बनती, बल्कि जूते लाती होते हैं। व्यवहार के कारण ही बात बनती है और व्यवहार के कारण ही बातें बिगड़ती हैं। इसलिए हम लोगों को अपने व्यवहार में बदलने का बहुत जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ द ऑल कॉज। मैंने इसमें एक एक्रोनिम दिया, ड्यूज, डाइट, एक्सरसाइज, वर्क एंड स्लीप। हमारे पास बैलेंस डाइट हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, हम अपने आप के लिए मनपसंद हमें काम मिल गया हो, और नहीं मिल गया हो तो हम उस काम को पसंद करने लगे, और 7-8 घंटे की नींद आती हो, तो किसी को किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक और मैंने कहा, नो कॉस्ट हेल्थ बूस्टर, योगा, एक्सरसाइज, स्लीप। बताइए योगा में क्या पास लगता है? अरे रामदेव को देख के मजाक में कहते ऐसे ऐसे करना है, भाई ऐसे ऐसे करो, एक्सरसाइज तो हो रही है आपकी। एक्सरसाइज करने में क्या लगता है? ऊपर नीचे दंड बैठक उठानी है, इसमें क्या लगता है? यदि हम सबसे सीढ़ियों पे चढ़ते, आज भी हम सब 5th फ्लोर पे सीढ़ियों से जाते, मैंने तय कर लिया, लिफ्ट यूज ही नहीं करते, जबकि हमारे साथ जवान स्टाफ है, वो लिफ्ट को आने दो। तो मैं कहता हूं कभी, हाँ आप तो उम्र से पहले ही बूढ़ी हो गई है, और काम जिसको मिल जाए, और सोना तो सर एक ऐसी जरूर चीज, इट इज नॉट जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज द रिजुवनेटिंग ऑफ द बॉडी। सो दिस काइंड के हमने इसे कई तरह के इसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि पूरी बातें तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। मैं फिर एक बार खास तौर से अपने मुख्य अतिथि श्री अनिल रतूड़ी जी का, हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष जी का, और हमारे विशेष अतिथि प्रोफेसर ओंकार जी का, जनरल नेगी जी का, राजेश टंडन जी का, इन सब लोगों को, और आप जो लोग आए हैं, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक कविता जरूर सुनाना चाहता हूं कि जो इस तरह से नहीं है, जो आपने कहा था, उसका कारण है कि मैंने शिक्षित लोगों के लिए लिखी, और मैं आप सब लोगों को इसको सुनने के लिए बाध्य करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये बात आप समझें और दूसरे लोगों को समझाएं। इस कविता का शीर्षक है सांप का उत्तर। एक बहुयामी व्यक्तित्व के धनी समाज सुधारक एवं दार्शनिक कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने कहा, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहां पाया? क्या बात है, धन्यवाद। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहां पाया? सांप ने उत्तर दिया। इसको आप एक एक शब्द को सुनेंगे सर, बहुत बार इसको सोचा है, और बहुत पहले नहीं लिखी, 1 दिसंबर को मैंने शुरू की थी, पढ़ा कहीं पे था, रात में नींद खुल गई, तो मैंने ये 5 लाइन हमने कहीं पे देख रहे थे, अज्ञे जी की मिल गई, उसी के बाद, क्योंकि मेरे का प्रतिज्ञा करने की मेरी आदत है। सांप ने उत्तर दिया, एक दिन प्रातः विचरण के लिए जंगल से नगर में गया था, एक दिन प्रातः विचरण के लिए जंगल से शहर में गया था, मैंने छिपकर सुना था, एक नगरवासी धूर्त मानव साधारण वनवासी से सेखी बगा रहा था। मैं वह नहीं जो आप सोचते, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, जानता हूं, मानता हूं, मैंने पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है, वचारम परम ज्ञानम, ज्ञानम परम बलम, अर्थात विचार ही सबसे बड़ा बल है। इसलिए मेरा शरीर आप जैसा, पर मेरा विचार सांप जैसा। मेरा शरीर आप जैसा, पर मेरा विचार सांप जैसा। सांप ने क्या कहा ये सुनिए। हे कपटी मानव, अब मैं समझा तू इतना विचित्र क्यों है, तू इतना घृणित क्यों है, क्योंकि तू आस्तीन का सांप लगता है, मुंह में राम, बगल में छुरी रखता है, धोखे से बात करता है, और हम जैसे सीधे साधों को मारता है, फिर हमें ही बदनाम करता है। धन्यवाद। हे अभिजात मानव, मैं वह नहीं जो आप सोचते हैं, आप मेरा इतिहास नहीं जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं मेरे बारे में अतीत और आज के धर्म और विज्ञान के ग्रंथों में कि लोग मुझे पूछते हैं, पालते हैं,
लोग मुझे पूछते हैं पालते, मैं अकारण किसी को नहीं डसता हूं, मैं उसी को डसता हूं जो मुझे डराता है, सताता है, क्योंकि मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। धन्यवाद सर। हे कुलीन, धन्यवाद सर। हे कुलीन, क्या आपने यह नहीं सुना है, पढ़ा है? पर मैंने तो साधारण व्यक्तियों से सुना है कि हर जीव का विकास वातावरण से होता है। हर जीव का विकास वातावरण से होता है और सीखने के 3 ही तरीके होते हैं, देख के, सुन के, करके। हे मनीषी, उत्तर सुनोगे तो आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। क्या आपने यह नहीं सुना है? यदि नहीं तो कान खोल कर सुनो, गांठ बांध लो। बद अच्छा बदनाम बुरा होता है, बद अच्छा बदनाम बुरा होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसलिए मैं सीना तान कर डंके की चोट पर कहता हूं, हे परम ज्ञानी, मेरा शरीर सांप जैसा पर मेरा विचार आप जैसा। मैंने डसना आपसे ही सीखा है और विष आपसे ही पाया। धन्यवाद। तो पुरानी वाली मेरी को देना। ये हमारी पहली पुस्तक थी जो कि उपहार संदेश का के नाम से थी, और फारूक जी ने, हाँ देखिए सर कितना सौभाग्य कहे, इसको संयोग कहे, क्या कहे हम तो नहीं कह पाते हैं। हमारे लिए सर ये पुस्तक का विमोचन है धामी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया था, धामी जी ने किया था। तो धामी जी ने बुला लिया, वो कहते 5 लोग आ जाइए। तो मैं 5 लोगों की तलाश में था, भाई किसको बुलाऊं? तो मैं फारूक साहब को जानता हूं। फिर उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर साहब ये तो बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए था, इसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा, सर आप कहाँ का सर? कहते कहीं नहीं, आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए। और मैं आज भी उस बात को याद रखता हूँ और उस मेमोरी को हमेशा चेरिश करूँगा कि फारूक साहब ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे अपने हॉल में इतने ढंग से किया जिसको मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। फोटो भी लगवा दी, उतना भी कुछ लगवा दिया। तो मैं आपका पुनः इसको धन्यवाद और इस कविता के माध्यम से फिर आपको धन्यवाद देना। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांशता। कवि कहते हैं, सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में? सपने ही, धन्यवाद। सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है, जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को समाने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को समाने के लिए हमारी शुभकामनाएं। हमारे एक और यहाँ पर डॉक्टर तरुण कुमार मंडल जी हैं, जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। चूंकि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपने हमारा एक्सटेंड किया। आइए सर, आप आगे। Now may I take the privilege to invite co-author orthopedic surgeon Dr. Gaurav Sanjay ji to please come up on the dais and address the gathering. Thank you. Thank you, esteemed guests, for being a part of the function, and ladies and gentlemen. As being a co-author, I think the primary author has taken a lot of time and expressed his serious opinions. I will try to, balance it out by having a very short speech. Basically, this book, the brainchild behind this is my father, and maybe I was a co-author
जैसे कहते हैं संयोग है, संयोग इसलिए है क्योंकि जैसे पापा ने कहा कि वो हिंदी में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो अगर अंग्रेजी में किसी को लिखना है और फिर उसको ड्राफ्ट करना है और उसको करेक्ट करना है तो वो काम मेरा था, ठीक है। तो आई वुड स्टिल गिव ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्रेडिट टू माय फादर फॉर ब्रिंगिंग दिस बुक एंड द होल टीम। वी हैव अ बिग टीम who it's just not about the opinions। एक छोटा सा एक आर्टिकल को लिखने में बहुत समय लगता है, उसको ड्राफ्ट, रिक्रिएट, ड्राफ्ट, फिर से चेक, रीचेक करने में बहुत बहुत समय लगता है। तो वी हैव अ बिग टीम विच गोज बिहाइंड दिस। अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है लक्ष्मी, सोनिया, करिश्मा, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई वुड लाइक टू थैंक द टीम बिहाइंड। वहाँ पर पीछे पाइनियर के लोग हैं, Paritosh sir, Hariom sir and the whole entire Pioneer team who has given us an opportunity basically to express our views, and as it said that once it goes out in public there will be some people who will be affected by this। कोई ना कोई शायद अगर उस चीज से रिलेट करता है या कोई ना कोई चीज उससे सीखता है, तो आई थिंक that is what makes the difference। And there are many things in this book which is close to my heart, and part is the road traffic accidents। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में हम लोग बहुत सारी अवेयरनेस पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी देते रहते हैं, और शायद अभी भी यहाँ पर कोई एक न्यूज़ रिपोर्टर आई हुई थी, तो आई थिंक इट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद द करंट सिचुएशन, स्पेशली द ONGC traffic accident which recently occurred in Dehradun। And people are always interested as to what probably happened wrong, गलत क्या हुआ, सही क्या हुआ। But I think it's big time when we start to actually follow all these things and have some civic sense regarding how we drive। आप देखेंगे हम सबको पता है कि गलत साइड पर ड्राइव नहीं करना चाहिए। आप राजपुर रोड पर ही देखेंगे सुबह के साइड ऑलमोस्ट 10-20 आप हर रोज सुबह देखेंगे गाड़ियां जो है उल्टे रास्ते पे, जाना इस तरफ है लेकिन साइड पर जाके देखेंगे तो आप देखेंगे तो कई बार क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाती है, जो व्यक्ति सही चल रहा है और वो अपनी स्पीड में चल रहा है, बट हम लोग को हमेशा कहीं ना कहीं से बच के चलना पड़ता है। वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा बहुत मिनिमल होता है जहां पर लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन ये होता है कि रूल्स लोग फॉलो नहीं कर रहे होते, बहुत कम लोग हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं और वो भी बेचारे फंस जाते हैं। There was a very startling accident which occurred in Meerut on Meerut Expressway। आपने अगर देखा होगा, एक स्कूल बस है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, and this was probably 6-7 months ago, and there was a big crash, छोटे-छोटे बच्चे मरे, and we all must be very careful regarding all these things, and I think हम सब लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग की खुद की क्या जिम्मेदारी बनती है इन सब चीजों के तरफ। अगर हम खुद एक स्टांस ही लेंगे, आप देखिए कि भाई हम खुद ही सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो दूसरे को क्या बोलोगे। जिस दिन किसी ने देख लिया तो हम लोग के लिए इतना ज्यादा इट हैज बिकम सॉर्ट ऑफ कि हम लोग जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो एक बार ऐसा हुआ, आई कैन एटलीस्ट टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस। हम लोग एक बार वापस जा रहे थे तो क्या हुआ कि बाकी सब लोगों ने तो सीट बेल्ट पहन लिए थे, मैंने ही सीट बेल्ट अभी तक स्ट्राइक नहीं करी थी। तो वहां पर एक बच्चा जैसे एवरीवन इज जस्ट अवेयर, देखो अभी तो बोल के गए थे कि सीट बेल्ट पहननी चाहिए, इन्होंने खुद सीट बेल्ट नहीं पहनी। So a lot of times all these things they bring about a responsibility as an author and also as a citizen we must be aware। Thank you very much, आप लोग सब आए and धन्यवाद। It is now my request to guest of honor Justice Rajesh Tandon ji to present his address। सभी को धन्यवाद। मंच पर आसीन मिस्टर रतूड़ी साहब, हम लोग अभी कुछ दिन पहले भी डॉक्टर फारूक साहब के फंक्शन में थे, रतूड़ी साहब भी थे, डॉक्टर फारूक साहब बैठे हुए हैं, संजीव चोपड़ा जी और हमारे बीच हमारे एजुकेशनलिस्ट और जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब ने आज ये जो पुस्तक का कार्यक्रम रखा है उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उनकी पहली पुस्तक जब निकली थी उस समय भी मैंने उस पुस्तक को देखा था, जो कि उसमें पुराने विचार
और किस तरह से मनुष्य को पालन करना चाहिए, वो सब बातें लिखी थी उन्होंने। आज नई पुस्तक में सर्जन्स की स्टोरी लिखी है। आज ये सारे कार्य वो उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने विकसित भारत का एक नारा दिया है कि विकसित भारत में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों को एजुकेशन शिक्षा देनी चाहिए और अपने संविधान का पाठ पढ़ाना चाहिए। संविधान में आप ये देखिए तो अगर अनुच्छेद 51 देखा जाए उसका, तो उसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं उसमें सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि हमें हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी कंपोजिट हेरिटेज को बचा सकें। कंपोजिट हेरिटेज क्या है? पुराने ज़माने से हम हिंदी के भाषा भाषी रहे हैं। हमेशा हिंदी का इस देश में हिंदी के अगर कवियों को देखा जाए तो राम कुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और बहुत से हिंदी के कवि पैदा हुए हैं। आज हिंदी के कवियों में हम जब नाम उनका लेते हैं तो पुरानी कविताएं याद आ जाती हैं, कबीर के दोहे याद आ जाते हैं और बस कबीर के दोहों में यही एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए और हमें अपने फल की इच्छा न करनी चाहिए। वैसे ही गीता में लिखा हुआ है, वही हमारे डॉक्टर साहब का ज्ञान है कि हमें अपने कर्तव्य की चिंता करनी चाहिए। हमें अपने क्या उससे मिलना है, क्या उससे सौभाग्य होना है, ये सब ऊपर कर्म वाला दिलाता है। हमारे भगवान बैठे हुए हैं, वो सब इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। हमें अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें आर्टिकल 51 और 51A सब में दी हुई हैं, जिसका कि अच्छी तरह से अगर सभी लोग उसका पालन करें तो उसमें सब बातें ये साफ हो जाएंगी कि हमारी क्या ड्यूटी बनती है इस राष्ट्र के प्रति, अपने प्रति और समाज के प्रति। आज हमारा उत्तराखंड इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम 1984 की घटना को देखें, जबकि माइंस ऑपरेशन सारा बंद कराया गया था, एक शख्स खड़ा हुआ जो कि रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र के नाम से उसने एक पिटीशन फाइल करी। उस पिटीशन ने पूरे भारतवर्ष को जगा दिया और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ माइनिंग का काम चलता था वो सब बंद कराया। ये भी हमारे संविधान की देन है। संविधान में दिया हुआ है कि हमें अपने प्रति और अपने इन्वायरमेंटल के प्रति किस तरह से हमारा कर्तव्य बनता है। धन्यवाद। Now I would request Professor Onkar Singh ji to please come up on the podium. इस सभागार में उपस्थित सभी को मेरा अभिनंदन और नमस्कार। मंचासीन पूर्व डीजीपी श्री रतूड़ी साहब, श्री चोपड़ा साहब, नेगी साहब, जस्टिस टंडन साहब और पूर्व सांसद एवं इस पुस्तक के ऑथर डॉक्टर बीके संजय और गौरव संजय जी, मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि मैं डॉक्टर संजय की लिखी हुई दूसरी पुस्तक के इस प्रकार के कार्यक्रम में शरीक हो रहा हूँ। एक कार्यक्रम इन्होंने अपने हॉस्पिटल के बेसमेंट में किया था, मैं उसमें भी सम्मिलित हुआ था और आज ये मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे इस उत्तराखंड के जो कार्यकाल है उसमें मैं दूसरी बार इनके इस पुस्तक के संबंध में आयोजित जो समीक्षा का एक समारोह है उसमें सम्मिलित हो पा रहा हूँ। मैं वैसे तो एक टेक्निकल फील्ड से आता हूँ, बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं और जिस प्रकार से हमारी पूरी सभ्यता में
तकनीकी का एक प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में जरूर सोचता भी हूँ, कभी कभी कुछ लिखता भी हूँ। डॉक्टर साहब ने जैसे हेल्थ के बारे में जो अपनी बातें कही हैं, जो इस पुस्तक में लिखी हैं, वो तो सब आप सबके पास पहुंचेंगी और आप पढ़ेंगे भी। लेकिन जो हमारी पूरी सभ्यता है, इस सभ्यता को जो आज सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, वो तकनीकी प्रभावित कर रही है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो कि तकनीक के किसी न किसी प्रभाव से प्रभावित ना हो रहा हो। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है कि आज हमने अपनी सोचने की शक्ति को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले करने का एक प्रयास किया। ये हमारी तकनीक की ही देन है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो एक लस्ट है, जो एक लेवल पे मेच्योरिटी पाते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने ये कोशिश की और कोशिश निश्चित रूप से कामयाब भी है कि एक कृत्रिम रूप से, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रही है। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, आपने भी देखा होगा कि नए राष्ट्रपति के कार्यकाल लेने के बाद एक स्टारगेट प्रोजेक्ट आया, जिसमें एक बहुत बड़ी पूंजी लगा करके पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में करने का एक संकल्प उन्होंने लिया है। और ऐसी परिस्थिति में भारत जैसा देश, जिसके पास सर्वाधिक आबादी है और उसमें से भी सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास हैं, ये हमारे लिए इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी औसत आयु काफ़ी अधिक है और आप सबकी एक पीढ़ी आपके नीचे होगी, हो सकता है 2-2 पीढ़ियाँ आपके नीचे हों। आपको इस विषय पर अपना एक चिंतन रखना चाहिए और नीचे की पीढ़ी को इसके बारे में सजग करना चाहिए कि आप अपनी सोचने, समझने, लिखने और पढ़ने की क्षमता को मशीन को ना दे दें। तो हमें अपनी नई आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए सजग करना चाहिए और उनको इस प्रकार के जो हमारे एथिकल बैरियर्स हैं उसके बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि वो अपने आने वाले जीवन में कुछ समाज को और सभ्यता को नया दे जाएं। और इस प्रकार की जो तकनीक है, जैसे हम लोग, आपने सबने एक बहुत कॉमन फ्रेज है कि टेक्नोलॉजी के अपने उसके कुछ सुखद अनुभूति भी आपको दे सकती है, कभी कभी दुखद भी दे सकती है। तो इसके जो दुष्परिणाम हैं उनसे दूर रखने के लिए पूरे समाज को, हम सबको मिलकर के जागरूक करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को एक इनेबलर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में एक केयर और एक जो हमारी उसकी थ्रेट्स हैं उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। मैंने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। It is now my due request to Lieutenant General J.S. Negi ji to please come up on the podium and express his views. जय हिंद। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर्स B.K. Sanjay and Gaurav Sanjay, the chairman, Dr. Sanjeev, the chief guest of today, DGP Rathuri ji, the Justice Tandon, Purva Sansad Shri Mandal ji, Professor Omkar, and a very, very august gathering. I was introduced to some of the very, very eminent personalities who are here. We have the former Chief Secretary, we have the former Vice Chancellors, very eminent doctors here, plus the friends from media. First of all, मैं बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूँ team of the son and father for taking out this wonderful, very informative, very educative, and a very, very simple and simple language which is easy to understand. There is not much of any medical jargon in it, and very, very useful, very good analytical book. I think it will make a very interesting reading for awareness as well as for आगे के हमें किस तरह से उसको सोच करना है, किस तरह से इन चीजों की रोकथाम करनी है. So our very, very deep appreciation and compliments to both of you in bringing out this wonderful book. इसके साथ साथ जो है उन्होंने बहुत चीजें जो है कवर करी. जो MC हैं उन्होंने बुक का सारांश दिया और बुक के बारे में बहुत कुछ जो है डॉक्टर संजय ने खुद ही जो है बहुत अच्छी तरीके से
क्या सोच से उन्होंने इसको लिखा और क्या क्या चीजें कवर करी। तो उसमें से पढ़ने के बाद ही मैं उसमें कुछ एक चीजों के ऊपर, कुछ बिंदुओं के ऊपर सिर्फ जो है मैं कुछ अपने विचार उसमें से रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो आई थिंक वी गॉट टू ऑल्सो रिमेंबर एंड revisit our very ancient medical system of our country by Charak and how our Rishi Munis and the Vedas at that time could diagnose and treat lots of diseases, and today we are going back, हम वापस जा रहे हैं उसके ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर में, और हमारे किस तरह से पहले शोध हुई थी, किस तरह से करते थे। So I think today we are going back, and it's a good thing that we are going to have a combination of the ancient medical system combined with the medical, and if we pay focus and attention, जो कि किताब में भी बहुत महत्व दिया गया है, on the wellness, on the lifestyle, I think we can have a very very healthier living, a longer living. Longer living is not the issue, but I think we got to have a healthier living. इसी के साथ जो हम लॉन्गेविटी का जो एक इसमें जो चैप्टर जो दिया गया है 102 में से एक इसके ऊपर भी है, और 451 पृष्ठ जो पेजेस हैं इस बुक के अंदर में टोटल। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि लॉन्गेविटी इज फाइन। आई थिंक टुडे आई रेड समवेयर इट्स आई थिंक 71 years or something in our country, but what is important is a healthy longevity, and that is a real cause of concern. How many of our very very elderly people, parents are living a healthy life? They are on support systems. Is this the right way for having our longevity? So I think we need to revisit, relook longevity combined with a good health and a healthy lifestyle is what is very very important. इसके साथ साथ एक बहुत जो अहम पहलू इन बुक्स में कवर किया गया है वो है रोड एक्सीडेंट. इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी सीरियस इश्यूज which is taking place today. Road accidents unfortunately are, I think if we are all serious with individually awareness, education and enforcement, वो बताया भी गया था, डॉक्टर संजय ने बताया था कि किस तरह से हम उसको एनफोर्स नहीं कर पाते हैं. If we are able to enforce it, I think we are going to save precious lives, lots of lives, lot of people who are on the disabled because of these for lifetime. Bulk of the people in these are the youth of the country, 25 to 35, 40 years, due to various causes. I mean, it has been well analyzed in the book, the reasons, and we all know by our हम अपने ही एक्सपीरियंस से देखते हैं कि किस वजह से जो अभी हाल ही में देश के ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में कितने भयानक और दर्दनाक जो है हादसे हुए हैं इन्वॉल्विंग द यूथ. कार्स की हुई हैं, बसेस की हुई हैं, and there are n number of reasons. The rash driving, the vehicle inspections are not there, overloading, the driver fatigue. We don't bother. हम आपने भी देखा होगा कि अब जब टैक्सीज में ट्रैवल करते हैं, जैसे हम कभी जाते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई आप एक तो मोबाइल को बंद करो, आप किनारे कर दो, हम रुक जाएंगे. उसके साथ साथ उसको चिंता होने लगती है अगर 4 घंटे यहाँ से 4-5 घंटे दिल्ली जाने में लगते हैं तो दिल्ली से 2 घंटे पहले या दिल्ली से आप इधर आ रहे हैं, कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं उसको पिक करने के लिए, विच इज अ वेरी सीरियस इशू. While when we see the aircraft and travel करते हैं, जहाज वही रहता है, उसकी मेंटेनेंस की पीरियोडिसिटी है, लेकिन क्रू जो है वो समय समय पर चेंज होता है. बट ये जो हम गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं ये तो आता है, आधा घंटा भी नहीं उसको मिलता है, and back he is again with the passengers. So there is a need to have some mechanism in place by which there is a regulatory mechanism on the movement of the vehicles and enforcement. And I think I must compliment our police force in Uttarakhand. DGP Sahab has himself been here, but I saw now at least there is a symbolism of two-wheelers, wearing the helmet has been made compulsory, triple riding, 4 people also sitting on those. So there is a need to further enforce it, because you feel very pained when you find that the youth 25, 20, 22 years, girls and boys are lying on the road. They are disabled for life. And look at the state of their parents. How are they going to afford and carry a child who's so young and disabled? So I think there's a need of education as well as enforcement of the rules. So that has been very nicely covered in this book. The other which has been covered is the pollution.
the sound pollution, the noise pollution, all kind of pollutions which are there. And at that time, I was the commandant of the Indian Military Academy when COVID happened. And there's 2 chapters on COVID. And Dr. Sanjeev was, I think, आप उस टाइम पे IS Academy के डायरेक्टर थे. So we had, nothing was known. कोई इसके डॉक्यूमेंट्री, कोई मेडिकल साइंस कुछ नहीं दिया हुआ था. एडवाइजरी आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ पढ़ते थे, लोगों से पूछते थे. उस करके we had 1300 gentlemen cadets, including 190 from foreign friendly foreign countries. And we had उसको enforce किया, सबकी राय लेकर के टीम वर्क के तौर पे किया. And I'm very happy to share, till August we did not have even one single case of corona and COVID in our academy, including 4,000 civilian population which was there. अगस्त में जब थोड़ी लोगों के जाने का हुआ, पोस्टिंग्स वगैरह हुई, तब थोड़ा थोड़ा आया. But to the credit of the team at that time, we did not have even one fatal cases at that time. We were the only academy till June in world over which we had a successful passing out parade, proper parade. Rest we were following West Point, Sandhurst, all these people, they had all track suit के ऊपर में और फुटबॉल ग्राउंड में उन्होंने मेडल्स और वो चीजें दी. We pray for the wellness, for the good of the humanity and our society. और पुनः मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर्स की टीम को और हमारे मुख्यमंत्री और आप लोग जो यहाँ पर आए हैं. आई विश आप में इतने लोग हैं कि जो अपना बहुत अच्छा ज्ञान बांट सकते हैं, बट मे बी सम अदर टाइम विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट एंड लिसन टू यू ऑल. धन्यवाद. जय हिंद. Now it is my humble request to the chairperson of today's program, Dr. Sanjeev Chopra ji, to please come up on the podium. My very dear friend Anil Rathodi, always nice to share a stage with you. General Negi, who was heading the IMA when I was having this responsibility at BSNA, Justice Tandon, my very dear friend Kar Singh ji, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন আমাদের মন্ডল বাবু, আমাদের এমপি আছেন, ex chief secretaries Mr. Indu Pandey, Mr. Ravi Shankar, Dr. Sudha Pandey, friends, ladies and gentlemen. It's a pleasure and an honor to give some comments on this absolutely wonderful book, From the Pen of Surgeons. I was privileged to write a little note for this book. And this point which I was trying to make there was that you see these 102 essays have been written over a period of 5 years. So one of the things to understand is that there are some books which are written instantly. They're like instant coffee. You put the pod in and you get the coffee out. So that is one kind of coffee. Then you get some better types of coffee, and then you get some South Indian filter coffee. Mr. Ravi Shankar is not very fond of coffee, but South Indian filter coffee is different because it takes a long time to brew. So when you have a book which is spread over 5 years, which means that it covers a lot of time and it covers a lot of space and it covers a lot of subjects, and I don't need to dwell on the subjects because all the speakers before me have touched upon the subjects. And in fact, Dr. Sanjay starts with his poetic landscape and his book speaks poetry and prose both with equal flourish. He's as we said earlier, that he's a person who wields the pen and the scalpel with equal capacity. We don't know which one is better. So one can often, think about going to his clinic and listen to some nice poems. His son has revealed the secret. His son has actually revealed the secret. Thank you, Gaurav. And let me tell you, your contribution is not just 10%. It is much more than that. Because the task of a person who translates, the task of a person who brings the original thought to a much wider audience is something which is not often acknowledged. But I think the time has come to acknowledge the next generation. So I think a big round of applause for Gaurav, because Gaurav has brought about something. And I think that also brings to focus a very important thing today. And that is, that we write in English and we talk in Hindi. It's become a very common practice that we write in English, but we think in English. We think in Hindi. In fact, when this whole thing about this most famous thing which Vikram Batra said, ye dil mange more. Now, ye dil mange more is actually a reflection of the verb structure and the noun structure. So what's happening is that
our verbal thoughts are in Hindi or in our mother tongue. For me, it will be Punjabi. For somebody, it will be Kumaoni, it will be Bangla, it will be whatever. But we started using a lot of nouns of the English language. And the reason we use the nouns of the English language is because English continues to expand. English continues to grow. And that's a point which I made very often, that when Mackworth was written, and of course Anil is a scholar of English as well, when Mackworth was written, there were only 66,000 words in the vocabulary of English. But English has continued to grow and grow, and fortunately now Hindi has agreed to grow, and I think it's a very positive thing. The book which won the WOW Award for non-fiction writing in Hindi this time is won by Dr. Pan. He's written Shabdon ke saath saath. And in Shabdon ke saath saath, he mentions that how in the Hindi dictionary today, adopt, adapt, sky, and all these have been made part of the Hindi dictionary. Now, till such time as we had the Raghuviri Hindi, in which meant that we have to translate everything. We have to translate, the necktie as Kantalangot, and the cream roll as Makhan Thas, and the train as Lo Pathagamani. Hindi could not have progressed. And this is a big debate, which I was reviewing a book the other day, in which the big point between, the dispute between Amitabh Bachchan, sorry, not Amitabh Bachchan. That's the problem if your son becomes more famous than you. So you're better off that way. You're still known as Gaurav's father rather than the other way around. But this is the point about what kind of Hindi do we adopt? Do we adopt a Hindi what kind of language do we adopt? I think it's very important, therefore, also to understand our languages, to understand the contribution of various languages. And I, for one, would certainly say that English is also an Indian language, because language which has been with us for 300 years, the language of the judiciary, the language of the courts, it's very much, so one should not feel any hesitation. The more languages we know, the better it is for us. Friends, thank you, Sareen sir. Thank you very much for your talk. You see, friends, 2-3 points which I wanted to make. Everyone looks at reality differently. Somebody looks at the reality through a telescope. Someone looks at the reality through a microscope. A historian has one way of looking at reality. A political person has a different way of looking at reality. A cop would have a different way. A bureaucrat would have a different way. All of us who have retired, we have a different way of looking at things, because there's the perspective of time. But the point that comes up is that here is two surgeons, and that is also an intergenerational connect which has taken place here. And I think we'd like to compliment them both. Now, 2 or 3 things which I thought I'll raise. One is, you see, today's second or third editorial in the Indian Express is very interesting. It talks about the fact that when the camera was made, a lot of painters in Paris felt that painting is perhaps going to be over. That did not happen. A camera is not a substitute for a painting. A camera is not a substitute for a painting. If camera is not a substitute for painting, AI is not a substitute for Dr. Sudha Pandey or for any one of the authors who are present here today. Salman Rushdie wrote this wonderful book, Victory City. And not Satanic Verse, wo to purani ho gayi, to dobara aa gayi. His latest book is Victory City. And the Victory City is describing the kingdoms of the south. And he says, he ends by saying that, and there were victors and there were the vanquished. There were the castles and there were the stables. There were this and there was that. But where are they now? Where are they now? All that remains is the city of words, because word is the most powerful thing. And word is Akshar. And when we celebrate the Akshar here and in WOW and in Dr. Sanjay's books, that is a real compliment to the word. So thank you very much, Dr. Sanjay and Dr. Gaurav, for having brought this book to us. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Dr. Tarun Kumar Mandalji to address the gathering. It's a proud privilege for me to be present here today in this great occasion of inauguration of a book of a surgeon. The surgeon's scalpel working here is a pain. I had the privilege of reading a book, a world famous book you must be knowing, The Scalpel, the Sword, that was about the great cardiothoracic surgeon and international physicians on Dr. Norman Bethune, who went to the war of the Spain
to safeguard democracy against the Franco's fascism, and also finally to China to liberate the country. I am very happy. I am a medical doctor from a premier institution of India, that is Calcutta Medical College, Calcutta, where from Dr. Neil Ratan Sarkar, the doyens of medicine, Dr. B.C. Roy, the K.S. Roy, the U.N. Brahmachari, such doyens were there. Those are history, and I must congratulate these two generation writers, the doctor writers. Being a doctor myself, I can tell that there are very, very few persons among the professions who write besides the textbooks of medicine or other things. I can tell you, in India, in modern medicine, is probably around 18 lakhs we are here in India. 1% also do not write of their experiences, of their patients, or what to do particularly for the people whom they are serving, in fact. So a special thank I must give to these two generation doctors, Dr. V.K. Sanjay and Dr. Gaurav Sanjay, who have taken the labor of writing down something which they have experienced in their practice, and particularly who are busy practitioners, famous practitioners, always remain on heels to write down something and to make a publication of it. It's a great work done by them. Look, medicine is a subject, and particularly it comes under the doctor's domain, many things of general people's life. There is a great pathologist of the 19th century, Rudolf Virchow, that is in medicine it is known as Virchow's gland and many things. He told that physicians are the natural attorney of the people. Physicians are the natural lawyers, attorney of the people, because most of their problems comes under the domains of the doctors, physicians. So point is, it is a great work done, and whenever I am listening from the erudite speakers, enlightened speakers, that many things he has covered over the bones and joints and tendons of the common problems of health, on environment, on our nutrition, on our diet, on pollution, etc. I must give many cheers to the writers, to the authors. Such kinds of books from the real experience of life when dealing with human being, not with inanimate things. It's animate things. It is a great thing to be pondered over. It is a good enough that two surgeons, because Sanjay Saab and Gaurav Sanjay Saab has brought out such marvels for our consumptions, for the consumption of the people, and for the good of the people. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. May I now invite Shri Anil Kumar Rathuri ji, the chief guest of today's program, to address the gathering. The chairperson of today's function, Dr. Sanjeev ji, the distinguished members of the panel on dais, Dr. Mandal Moshai, Dr. Singh, Distinguished General of the Indian Army, and General Negi, Honorable Justice Tandon ji, and of course the two protagonists of this function, the heroes of today's function, Dr. B.K.S. Sanjay ji and his distinguished son, Dr. Gaurav Sanjay. At the very outset, before I begin, I'll be very brief. I'll just warn you, because I am sure that by now the fatigue of oratory might have already overcome you. So I'm not going to take much time. But all the same, it is important for me to fulfill my obligation as being the person on the dais. And in that sense, I will talk about what is my view about this particular book. At the very outset, I would like all of you to kindly clap for the two doctors on the dais who have written this wonderful book, which you all know from the pen of the surgeons.
We've been talking about the erudite speakers here have talked about the scalpel and the pen. Well, they say that since God could not be everywhere, God made mothers. I say that since God could not be everywhere, God made doctors. They are everywhere. Yes, perhaps the closest a human being can come to becoming, or rather almost obtaining the power of the Almighty, is in the operation theatre or in the chamber of a doctor, who assists human beings to live longer, to live healthier. That is what the oath of Hippocrates says also. That is perhaps, and that is why it is a profession. It is not a job, it is a calling, it is a vocation. It is not something which you go and do any kind of job which you earn your living. Well, of course, honorable living for every human being with dignity is necessary. But the profession that one is in, there are differences in that. And the medical profession is one of those things where a human being comes in distress, where his existence is challenged. And therefore, it is something very extraordinary for doctors to reach this kind of distinction, which both of the father and son duo have reached, and more so the father, who is also a Padam Shri. Obviously, the system was also recognized his contribution. I have gone through this wonderful book, and in this book, I am also aware there is something which he has not very clearly brought it out, but in the Dr. Ambedkar's chapter, I see there is a subtle way of putting that he has put it. What kind of educational struggle he had. It's very extraordinary achievement. I would like to compliment for this extraordinary distinction in the place that you have reached in society. We are very proud of you, Dr. Sahab. We are very proud of you. Yes, what Dr. Mandal said just now. There are very few practitioners of medicine would delve into or foray into the area of writing, and more so creative writing. We've heard his poem just now. In this book, when we see, when you read this book, as Dr. Sanjeev Chopra mentioned, the power of the word. The power of the word. In the Bible, they say that in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It's शब्द हमारी संस्कृति में है कि शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, जो ब्रह्म है. So very rightly pointed out in terms of what Salman Rushdie has written. And in that sense, what he said, that Sahyog, and this is exactly what he's doing, and this book is in that direction. He has talked about not only the subjects that I'm not going into the details of the various articles, because obviously a lot of things have been said by people here, and himself, and obviously the kind of justice that would be done would be for people to read it. I'm just trying to engage you to the extent of creating some curiosity, so that you read the book. And over a period of 5 years, in the entire gamut of thinking that human being can think of, in trying to raise the level of human quality of life in society. That is perhaps what they have been trying to do through these subjects, whether it's education, nutrition, health, all kinds of things. Whether talking about individual diseases, relating it to the United Nations and the global movement going there, contributing towards that. Every day we wake up in the morning and we see the sun rising. And every day it sets. It is the wonder of this beautiful life we miss all the time, because of the mundane activity of the creature level that we are living. Most of us, at least in this hall here, are well to do,
And we have at least that basic threshold we have crossed of the basic existence, where the basic requirements we have fulfilled already. The question one may ask is, what is our contribution beyond our own comfort level, beyond our own family, beyond our own profession to society? Why the question is relevant is, India is one of the richest lands in the world as far as nature is concerned. You think of anything, any resource, and that is available in India. The question we may ask is, why, despite when nature has made us so wealthy, why some of the poorest people have been continuing to be living in this land for centuries? It is our inability to put our act together. It is our inability to put our act together. Fortunately, since the last few decades, we are now as a country, as a nation state, moving in the right directions. A miracle seems to be happening. It took 5,000 years. We have very distinguished people here. आदरणीय पांडे जी बैठे हुए हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, विद्वान हमारे लिटरेचर के भी विद्वान हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे रविशंकर साहब बैठे हुए हैं. That it took 5,000 years for India to become an economy of $1 trillion. In 2002, we became $1 trillion GDP for the first time. And in the next 10 years, we became 2 trillion, and now, of course, we are touching 4 trillion and perhaps moving very quickly if this kind of rate of growth continues. Every one of us has to contribute, and especially the people who are in our class. Why should socio-economically depressed classes be still poor in this country in millions? Why should they be? That is the question. And these articles in this are an effort in that direction. And it's like the man trying to, or rather both the fathers and duo, not only moving in the realm of self-actualization, but providing an intellectual leadership of thinking, of provoking others in that direction. And in that sense, I congratulate both of you that you have, over a period of time, come up with these wonderful articles. And I am told that these were published in the Pioneer. The Pioneer, of course, I'm told the editors are sitting here. I was just told it's one of the oldest English newspapers in the country. And perhaps after Times of India, it is the second oldest newspaper in the country. And no less than Rudyard Kipling was once an assistant editor there in Lucknow, in Allahabad probably. So I will not take too much of time because the fatigue of oratory perhaps is already beyond repair. But all the same, I would say that there are two, three observations I want to make. One, just briefly passingly, one is about the population. You have very rightly said that population is an issue. Whether it is a problem, that I can't say. I mean, because there have been various ways of looking at population at different times in history. If we go back to the primordial stage when the human longevity was just about 30 years, 20 years, 25 years, while killed by animals or by famines or all those kind of things, the Arabs used to say, may your tribe multiply. May your tribe multiply. Because obviously that living, having more progeny was the only way that extinction was ruled out. And then you have a period, it took perhaps almost up to 1700. The population of the globe was less than a billion. Almost by 1800 we became 1 billion. And now we are almost touching 8 billion. So in the last few, 1 or 2 centuries, because of you're a doctor and medicine expert, just about 150 years, there was no germ theory. People didn't wash their hands. The surgeons didn't disinfect their scalpels before
going in for operations. Before it came. Yes, exactly. That's what I'm saying. So about just about 150 years. So in that sense, there was a lot of depth happening. Now in the last few centuries, you have the population explosion, and in the 60s and 50s, we heard about population explosion. And Malthus said that, well, the arithmetic and geometric proportion of food and population and all that. But now there is another concept which is ultimately, if you look at it, it is the population which is the most important human resource, which is the most important resource on the face of this earth. Bereft of the human life on this face of this earth, what meaning does this world have? So the question is whether the population is an asset. To what extent is it an asset? What is the threshold? And if there is a concept of demographic dividend now, that if suitably skilled, the population can actually produce tremendous growth and wealth. China, for instance, in 1987-88, it got into a particular phase where the number of youth was the maximum in the world. And they continued in that period right up to 2005, which means almost 35-40 years of a period where the people who were earning in numbers were more than the people who were dependent. And now, and obviously we can see what happened in China. They lifted people out of poverty, and today they are almost $13,000 they are per capita. And we are now, since 2004-05, we have gone into that threshold. And perhaps we will continue to be like that up to 2045-46. Now, the question is whether we are able to skill them appropriately and reap the demographic dividend, make the country rich, wealthy, before we age and the dependents become more. So these are all issues. The second aspect I want to touch on is, yes, you talked about great things about the doctors and wonderful, I have great respect. One of the biggest challenges today we face is that we have brilliant doctors. But how come many a person, especially the uninformed lower middle class, who's ready to go to a particular doctor for treating his own problem, but he's not sure whether that treatment is actually required? How has this spiraled into a market? You see, beyond a point, obviously, a certain amount of dividend the particular system has to take, especially in the private corporate system. And in that sense, perhaps brilliance and ethics, they need to be merged and married somewhere, where I think we need to work on. Perhaps you need this food for your thought. This is food for your thought, because Ayushman is there now. It's a great thing. Obviously, for people who are, especially the underclass, who have nothing. Yes. But the question is, they will go to the doctor. Whether that is, how that is used, whether it was necessary, these are questions which ordinary man can never answer. So this aspect, and of course, alcoholism. In Uttarakhand's context, it's more important, because we are all aware, I'm a Uttarakhandi. So that's wonderful thing that you have brought. I will not go into the entire gamut, because there are so much things that can be taught. I will congratulate both of you and say that आपने जो सांप वाली कविता जो सुनाई अज्ञे जी की, वो ये है कि मनुष्य जो है, सारा जो दोष है उसके विचार में से तो निकल रहा है. सवाल यह है कि अगर तो हम सबसे धनाढ्य धरती है हमारी, तो हम गरीब हैं क्यों? हम इतने समय गरीब क्यों रहे? हमारे विचार की तो बात है. पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने सेटन को अल्टीमेटली, the seduction done by taking on that fruit is by Satan, who comes in the form of a snake. Now who's writing it? The snake is not writing it. The creation of the snake in that form is the man.
So ultimately, it is the externalization of the human evil. The question again is asking that where has this evil come from, except from your own mind? So if we are able to eschew that and get the spark which with both of you seem to be excited, perhaps we can take all of us together. One very interesting thing, Akira Kurosawa, one of the greatest film directors. Somebody asked him, "What is the common most important theme in your films?" So for a moment, he pondered, and then he said, "Well, I won't say there is a theme, but the question, it is in a form of a question. And what is the question? The question is, why can't human beings live together happily?" That is the biggest challenge. So I said, getting along with people. So with these words, I congratulate both of you and wish that more power not only to your scalpel, but to your pen also. Thank you. As we now come to an end of today's program, it is my humble request to Dr. B.K. Sanjay ji to present a vote of thanks. यही सोचा था जो आप सोच रहे कि सांप का उत्तर का इस किताब से ना इससे ना पुरानी से कोई नहीं। ये मेरी नई पुस्तक आ रही है उद्गार, क्योंकि हमें पब्लिकेशन के भेजना है, इसके बाद मैं आ जाऊंगा। तो मेरा लिखने का और सुनाने का यही था कि आप लोगों की मेरे पर प्रतिक्रिया आएगी। और जो मैंने लिखा है सच में बहुत सोच समझ के लिखा है, 1 महीने भर में ही लिखा है। किसी दिन मैं पढ़ रहा था ये 5 लाइनें, तो मैंने सोचा, फिर कई बार लिखा, कुछ और इसमें जोड़ते रहे। इसमें एक खास बात है, इसमें कई मुहावरे यूज़ किए गए और जो शब्द यूज़ किए गए, कपटी है, अभिजात है, कई बार हमें ही नहीं पता था कि इनका मतलब क्या है। तो मैंने डिक्शनरी में देखा हुआ है और उसको लिखा हुआ है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को हमारी कविता को जो पसंद आई है, और समय समय पर हमारी किताबें आती रहेंगी। मैं आपको यहीं पे अभी मुझे कहने में कि मैं अभी बताना तो नहीं चाह रहा था, मैंने अभी पुस्तक लिखी है हिंदी में, भारत में सड़क दुर्घटनाएं, जिसको कि मैं आशावान नहीं था, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो बड़े हैं, क्योंकि बच्चों को मैं सच कहता, हम लोग सब लोगों को बहुत ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी होना चाहिए। उसी के संदर्भ मैंने सर उनको एनवीटी को भेजी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, स्वीकृति भी आ गई है, और कुछ दिनों में वो छपेगी। तो मेरा उस पुस्तक का उद्देश्य इसलिए नहीं था कि मैं किताब उनकी तरह छपवा नहीं सकता था, मैं सक्षम हूँ, छपवा सकता हूँ, लोग वो हमारे तक रहती। लेकिन मैंने जो अभी आपने सहयोग की बात कही, उसी के सिद्धांत से देखा कि एनवीटी एक बहुत बड़ी संस्था है और देश की बहुत सी लाइब्रेरी में जाएगी, और उसको मैंने हिंदी में लिखा और अपने ढंग से भाषा में लिखा। इसके अलावा आप गौरव। धन्यवाद। I would like to thank everyone, especially Rathodi sir for sparing his time, Dr. Sanjeev Chopra, Professor Omkar, General Negi, Justice Rajesh Tandon, and Dr. Mandal for coming and being a part of this program. It takes a lot of efforts to join in and be a part of this celebration. Thank you very much all, and thank you to our august audience for sparing their time, and it's been almost 2 hours. आप सब लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।